Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we will be discussing about a very important topic called as ASEAN. And if you are reading any newspaper, I'm sure you must have come across this term called as ASEAN, Association for Southeast Asian Nations. And that is why I have decided to discuss this ASEAN, Association for Southeast Asian Nations. So if I'm audible and visible, please write yes in the comments so that we can begin our class. Yes, good afternoon, Arshnur Kaur. Good afternoon, welcome to the class. So am I audible, visible? Everything is fine. Shall we begin the class? So ASEAN important hai because first it comes in the news and India is also having some relation with ASEAN countries. Okay, we are having a defense minister level talks also which happens quite frequently. And we had earlier invited ASEAN countries in Republic Day, all the ASEAN countries, head of the states in Republic Day as a chief guest. So that is why I have decided to discuss this in today's class. So shall we begin? I think everything is fine as people are saying. So let us begin with the first question. So the first question is, which of the following is correct about regarding ASEAN? See, why I'm asking it, because this type of questions we have already seen. If you see the previous year question of CLAT, this question was asked like this type of key. This is an intergovernmental grouping, non-governmental, non-profitable, intra-governmental. तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए. इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट डज एग्जैक्टली इट मींस. सो दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू नो. सो व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? प्लीज आंसर मी. अच्छा, एक चीज बताइए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी? एनीवन? देखो, here the right answer actually to this question is option A, intergovernmental organization. Intergovernmental means, तो अगर हम ऐसे पूछे इंटर स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ? बिटवीन टू स्टेट्स. इफ आई यूज द वर्ड इंट्रा स्टेट, सो विद इन द स्टेट, अपने ये स्टेट के अंदर. इंट्रा मतलब होता अपने गवर्नमेंट के अंदर. ओके, here this is intergovernmental means between two states, or actually intergovernmental here means not only one but multiple nations participating in it. And I've told you many times, like ASEAN is having more than one nations. In fact, when I told you that the questions are asked about United Nations, SCO, G20, G7, so the answer would be intergovernmental organization. Okay, so that is what you should be knowing. So A is the right answer. NGOs वगैरह होता है, NGO, NPO, similar, बहुत nearly similar होता है. Yes, Ashnur Kaur, you have to be careful because these are low hanging fruits. ठीक है, तो ये सब मिस नहीं होना चाहिए. देखो एनजीओस वगैरह क्या होता है, जैसे एक तो डोमेस्टिक लेवल के एनजीओस होती है बहुत सारी, जैसे प्रथम एनजीओ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट, है ना. सो व्हिच इज फेमस फॉर कमिंग अप विद एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट. और भी बहुत सारे एनजीओस हैं इंडिया में फॉर डिफरेंट पर्पस. बट जैसे इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओस होता है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, एंड डिफरेंट एनजीओस एट इंटरनेशनल लेवल इज आल्सो देयर. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस सब में. ये सब टर्म पता होना चाहिए, बिकॉज जनरली इफ दे आर आस्क्ड अगेन देन यू शुड नॉट मेस अप दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ASEAN is a regional intergovernmental or grouping of South Asian nations, Southeast Asian nations, East Asia or Eurasia. What is the right answer? In fact, I have already given you a hint. I mean, if you are watching my class in the since beginning, you can easily answer it. Yes, Koshagra, Saxena, and Ashnur Kaur both right. The right answer is option B. Southeast Asian nations is the right answer to this question. B is the right answer. देखो, सबसे पहले let me show in the map. Okay. देखो. So this is India. So this region is technically called as Southeast Asian nation, है ना? And these are actually members of Southeast Asia. ठीक है? Okay. So this is these countries are actually the members of ASEAN, which belong to the region of Southeast Asia. So the right answer is B. Yes, Arshnur, Kaur and Natasha, you both were right. B is the right answer to this question. ठीक है, आप देख सकते हो. You can see these are the names and these are the countries. Okay, now the next is, now I hope you can answer this question also. Full form of ASEAN बताइए, what should be the answer? The options are Association of Southeast Asian Nations, Association for South Asian Nations, Acknowledgement of Southeast Asian Nations,
ad hoc group of Southeast Asian nations? And I think I have already spoken in the beginning of the class, so I am expecting you all to answer it. Yes, Natasha, Kushagra, Noor, you all are right. Right answer is Association of Southeast Asian Nations. देखो कैसे याद रखना, अभी मैंने आपको साउथ ईस्ट एशिया बताया ना, तो ये अगर साउथ ईस्ट एशिया है, उसके आगे यहाँ पर एसोसिएशन ऐड कर लेना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हो गया, ठीक है, तो ये बन गया आसियान, ठीक है, सो इट बिकम्स आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है ये, तो ऑल दीज कंट्रीज आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ओके, A is the right answer to this question. Now let's move on to the next one. ASEAN was established in which year? 1997, 1967, 1991, 1952. इसी तरह मैं if I'll get a chance I will plan for BIMSTEC and SAARC also. ये दोनों भी बहुत important है, ऐसे questions आते हैं, I have seen in different exams questions being asked from BIMSTEC and SAARC also. So maybe in the next week or next to next week जब भी हमको मौका मिलेगा, I will schedule the class for this also. ठीक है. So what is the right answer? Yes, Kushagra, Archnur Kaur, Natasha, very good. You all are very well prepared. Yes, B is the right answer. I'm very happy that you all know it, because generally knowing such information at your age is of course a great deal. So it is a regional organization, intergovernmental organization that promotes economic growth, peace, security in Southeast Asia, and established in 1967 by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. So these are the things you should be knowing about. Okay, let's move on to the next one. The next is, how many nations are the members of ASEAN? 10, 11, 12, 13. ये पता होना चाहिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. आसियान ग्रुपिंग्स जो है उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? Yes, Kushagra, Arshnur, Natasha, you all right. The right answer is 10. So A is the right answer to this question. और 10 कंट्रीज का मैं आपको नाम दिखा दे रहा हूँ फ्लैग के साथ. दिस इज ब्रूनी, ब्रूनी दारुसलाम. अच्छा, इसका कैपिटल कोई बता सकता है? Then we have Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. ठीक है. So these are the 10 countries, है ना. ब्रुनेई का कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, है ना. यस, अर्शनूर कौर, वेरी गुड. कंबोडिया का नॉम पेन. इंडोनेशिया का क्या है? नुसंतारा, है ना. लाओस का है अनोई. मलेशिया का कुआलालंपुर. म्यांमार का नैपीटाओ. फिलीपींस का मनीला. सिंगापुर का सिंगापुर सर्फ एज अ सिटी. थाईलैंड का बैंकॉक एंड वियतनाम का, है ना. Yes. So this is all about this is question number 10, option 10, है ना. है ना. वियतनाम का हनोई. हाँ, मैंने लॉस का बता दिया था गलती से. ठीक है. अच्छा, एक दो चीज है, मैं आपको थोड़ा सा मैप बताना चाहता हूँ. द रीजन इज बिकॉज पीपल डू गेट कंफ्यूज्ड. तो देखो, जैसे ये वाला जो है ना रीजन, दिस इज रफली कॉल्ड एज एशिया, because I know people get confused between Asia. So this is Asia, है ना. Okay. Now होता क्या, because I'm so India lies in which region? Which Asia? South Asia, Southeast Asia, Central Asia, West Asia. कौन से रीजन में इंडिया लाई करता है? उसका कौन सा टर्म लिखते हैं? तो अगर आप गौर से देखोगे, if you see it carefully, this region, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे एक और है ताजिकिस्तान, which is missing here. ठीक है. नहीं, इंडिया साउथ एशिया में आता है. यस, कुशाग्र, यू राइट, नॉट साउथ ईस्ट एशिया. देखो मैं बताता हूँ, ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन पता होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेंट्रल एशिया. अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होगे, इफ यू रीड एडिटोरियल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, व्हिचएवर, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म, कि सेंट्रल एशिया टर्म आपने देखा होगा अखबार में जब भी आप पढ़ते होगे. तो जब भी सेंट्रल एशिया की बात हो रही है तो वी आर टॉकिंग अबाउट कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान. ओके, तो ये आपको बताना चाहिए.
दूसरा है वी एक्चुअली, सो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो आता है, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज, इस रीजन को कहते हैं साउथ एशिया। ठीक है, प्लीज बी केयरफुल, इसीलिए सार्क ही बनाए। सो व्हेन वी विल डिस्कस सार्क, बिकॉज वी विल बी हैविंग अ सेपरेट क्लास फॉर दैट, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में लाई करता है, ठीक है। देन ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी अभी हम लोग बात करें। सो करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साउथ ईस्ट एशिया। ASEAN countries, which is the grouping is called as ASEAN, so they have made a grouping called as Association for Southeast Asian Nation, ठीक है ना। इधर एक ग्रुपिंग है, एक रीजन है, इस रीजन को हम लोग जनरली कहते हैं वेस्ट एशिया। आपने सुना होगा नाम, आई एम 100% श्योर यू मस्ट हैव हर्ड व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। इसको कहते हैं वेस्ट एशिया, जो अरब कंट्रीज है ना, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, हेरिस जॉर्डन, इजराइल, ईरान, यमन। सो दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट एशिया, एंड देयर इज अनदर नेम फॉर दैट, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, इसका एक और नाम आपने सुना होगा, मिडल ईस्ट। हैव यू हर्ड दैट? और इसका एक और नाम सुना होगा, बिकॉज दिस इज पर्शियन गल्फ, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। तो कंट्रीज अराउंड इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज गल्फ कंट्रीज, इसीलिए इस रीजन को कई बार गल्फ नेशंस भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि वो गल्फ में जॉब करता है। तो जैसे अगर यहाँ पे यूएई है, दुबई है, कतर है, बहरैन है, कुवैत है। सो इफ समवन इज फ्रॉम इंडिया इज डूइंग जॉब इन दिस रीजन, so we say that he is doing job in Gulf. आपने सुना होगा, I'm sure you must have heard this term. So basically it is referring to the Persian Gulf, where you will find a lot of petrol etc. or oil and natural gas, है ना। ये हो गया। अब एक और रीजन है, इसको कहते हैं हम लोग ईस्ट एशिया, ये वाला। आपने सुना होगा ईस्ट एशिया समिट वगैरह भी होता है, तो ईस्ट एशिया इस रीजन को कहते हैं। ईस्ट एशिया में जापान आता है, साउथ कोरिया, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, और ये चाइना का ये वाला पार्ट, बिकॉज यहाँ पे बीजिंग यहाँ पे आता है, सो दे कॉल इट पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। और यहाँ पर रशिया है, रशिया का, जैसे यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक है, व्लादिवोस्टॉक। यहाँ पे कई बार समिट भी होती है व्लादिवोस्टॉक में, ईस्ट एशिया समिट। तो चाइना को जनरली जो है ईस्ट वाले हिस्सा में ले लेते हैं, ईस्ट एशिया में मान लेते हैं कुशाग्र, ठीक है, कई बार। सो ईस्ट एशिया समिट वगैरह होती है, सो दैट जनरली समटाइम्स दे कॉल इट एज अ पार्ट। इवन रशिया का भी कुछ हिस्सा जो है, जैसे व्लादिवोस्टॉक में जब समिट होती है ना यहाँ, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ रशिया, सो दे कंसीडर दैट आल्सो, ठीक है। सो ऐसे ये वो एशिया की बात। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर यू विल कम अक्रॉस दीस टर्म्स, ठीक है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया। अगर कोई पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री रफली, ताकि ये सब हेल्पफुल होगा। अगर आप पीवाईक्यूज भी उठा को देखोगे, सो यू विल सी आइदर इन ऑप्शन, कई सारे ऑप्शंस में सेंट्रल एशिया वर्ड मेंशन था। अब आप एग्जाम में बैठे आपको पता ही नहीं कि सेंट्रल एशिया क्या होता है, तो देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाई मैप इज वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन और फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इसीलिए मैंने आपको आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है। ओके, सो लेट अस, है ना, तो वी हैव डिस्कस दिस। इज माय वॉइस क्लियर? मेरी वॉइस ठीक से पहुंच रही है ना? बिकॉज आई हैव सम हेल्थ इश्यूज, सो आई एम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आई थिंक ठीक से पहुंच रही है ना? ओके, खैर। सो हियर यू कैन सी दीज आर द 10 कंट्रीज, है ना, आप देख सकते हो। दिस इज म्यांमार, ये वाला हिस्सा यहाँ बना है, ये थाईलैंड है, ये वाला हिस्सा। देन हियर इज कंबोडिया। सिंगापुर एक छोटा सा शहर है, और मतलब सिटी स्टेट्स टाइप का चीज है, यानी एक सिटी है बट वो कंट्री के इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज किया होता है ना। ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया काफी बड़ा है, पूरा इतना सारा इंडोनेशिया है ना। देन वी हैव लाओस, ये वाला लाओस है, ये वियतनाम है, ये फिलीपींस है, ये छोटा सा ब्रुनाई है। इससे अच्छा तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो ये म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये पूरा फिलीपींस, मलेशिया इतना है, देखो दिस इज मलेशिया, ये दोनों मिला के मलेशिया है, ठीक है। ये छोटा सा कंट्री, इसको कहते हैं ब्रुनाई, ठीक है। फिर एक और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये पूरा जो है ना यहाँ तक, ये वाला हिस्सा इतना था, दिस इज एक्चुअली इंडोनेशिया, ठीक है। ओके, और यहाँ पर एक छोटा सा सिटी स्टेट टाइप है सिंगापुर, जहाँ पे इक्वेटर क्रॉस कर उसके एकदम करीब से, ठीक है। So this is what you should be knowing, the 10 countries of ASEAN. पापुआ न्यू गिनी अभी पार्ट नहीं है आसियान का, ठीक है, ऑब्जर्वर का पार्ट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो ये सारे का फ्लैग्स भी है। इफ यू कैन सी इट, मलेशिया का फ्लैग इज वेरी नियर टू अमेरिकन फ्लैग, है ना, आप देख सकते हो।
बाकी कभी एक बार फ्लैग देख लेना, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लैग। मैंने जैसे एक एग्जाम में देखा था ये पूछते हुए कि कौन से कंट्री का फ्लैग ट्रायंगुलर होता है, ऐसा है ना, सो द आंसर वाज नेपाल। So sometimes they do ask some unique things related with flag also. Okay. Now, since we are talking about flag, here is the next question related with flag. Which of the following is a flag of ASEAN? And if you tell me the other options also, that what are those flags, then I'll be very happy. So iska to answer, you can see the thumbnail and answer me because it is written in the thumbnail. So if you have seen our thumbnail, you can answer. Yes, Kushagra, Pro Gaming, Natasha, Kushagra, you all are right. Huh? The right answer is B. ऑप्शन ए क्या चीज का है, कोई बता सकता है? ऑप्शन ए, सी और डी किसका है? ए इज यूरोपियन यूनियन, गुड। यूरोपियन यूनियन का आई हैव ऑलरेडी टेकन अ क्लास ऑन यूरोपियन यूनियन, जस्ट सर्च यूरोपियन यूनियन करियर लॉन्चर ऑन यूट्यूब, यू विल गेट दैट। ऑप्शन सी इज अफ्रीकन यूनियन, यस प्रो गेमिंग, वेरी गुड। दिस इज ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीका का मैप भी बना हुआ आप देख सकते हो उसमें। यस प्रो गेमिंग, वेरी गुड। ये डी देखो, सी ऐसे लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आई हैव टेकन क्लास ऑन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आल्सो, ठीक है। द राइट आंसर इज बी, ASEAN का फ्लैग ऐसा, ठीक है। सो इट इज रिटन द थंबनेल आल्सो, एंड गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ ASEAN फ्लैग आप देख सकते हो। सो दिस इज द फ्लैग ऑफ ASEAN, ओके। ऐसे अब याद रख सकते हो, देखो ये ए हुआ, ये एन हुआ, एन से एंड, ए से ए, देखो ये ए और ये एन, एन आप उल्टा लिखोगे तो ऐसे ही लिखा है, तो आसियान ए और एन लास्ट वर्ड है ना। तो जस्ट यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। सिग्निफिकेंस आई डोंट थिंक, एक बात मैं बताता हूँ मैं फ्लैग क्यों पूछता हूँ, because I see the previous year question of many exam. So I saw in one exam asking the WHO's logo, WHO's flag. अगर आप WHO का फ्लैग देखोगे तो यूएन का जो लोगो है ना, उसके ऊपर एक रॉड इस तरह का है और उसमें सांप है on the just above the United Nations logo. So there is a rod and the flag is and there is a snake around it. So this was once asked in an exam. किसी एग्जाम में पूछा था, आई थिंक एमएचसीटी कहीं पूछा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट समवेयर दिस वाज आस्क्ड। तो इसीलिए मैं फ्लैग भी बताते चलता हूँ कि समटाइम्स जैसे एक बार और आरबीआई के लोगो किसी एग्जाम में पूछा था। सो समटाइम्स दे डू आस्क कि लोगो फ्लैग ये सब पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए, बहुत रिसर्च नहीं करना है, बट एक सो दैट यू कैन एटलीस्ट रिकॉग्नाइज, मतलब देख के पहचान लोगे अच्छा ये इसका है। ओके, ये एम्ब्लेम है, वही ये बचा तो ये एम्ब्लेम हो गया, और है ना, और ये जो फ्लैग हो गया। The next is which of the following has applied for the membership of ASEAN, but it is yet to get it. It is in a process. So Cambodia, East Timor, Iran, or Tasmania. What is the right answer? आसियान के मेंबरशिप के लिए किसने अप्लाई किया? तो किसी ने कंबोडिया बता दिया। देखो कंबोडिया इज ऑलरेडी मेंबर, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, तो क्यों अप्लाई करेंगे फिर से? देखो ईरान तो उसमें आता भी नहीं, वो वेस्ट एशिया वगैरह रीजन के आसपास पर्शियन गल्फ के बगल पड़ेगा, तो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट ही नहीं है। तस्मानिया नीचे ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, सो द राइट आंसर इज बी। यस, अश्नूर कौर, कुशाग्रा एंड नताशा, यू ऑल राइट, बी इज द राइट आंसर, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 साल पहले ही अप्लाई किया था, है ना, 2022 में आसियान सबमिट हुई थी कंबोडिया में, सो इट हैड अप्लाइड फॉर इस्तामोर हैड अप्लाइड फॉर दैट to be granted as 11th member, but I have checked it till now, so it has not been granted a full fledged status. मैंने कल ही चेक किया था, तो अभी तक जहां तक मालूम है, they have not got the membership. So this is what you should know, है ना। आगे हाँ, so here is East Timor, ये वाला आप देख सकते हो। so ये वाला तैमूर लेस्ते, ऐसे एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनी थी पहले, इसीलिए इस तरह लिखते हैं, बट उसका मतलब ये होता है ईस्ट तैमूर, तो फ्रेंच में वैसे लिखते हैं तैमूर लेस्ते, ठीक है। so nothing to worry, both are same thing, okay। now let's move on to the next one. Which of the following are not the observer states of ASEAN? Papua New Guinea, East Timor, New Zealand, none of the above.
देखो गौर से, जब भी देखो मैंने यहाँ पर नॉट अंडरलाइन कर दिया, बट whenever you are sitting in the examination hall, nobody is going to highlight that not लिखा हुआ है, तो आपको खुद से पता होना चाहिए। Why people are marking C, D? The right answer is C. न्यूजीलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आता ही नहीं है, ये दोनों मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो द राइट आंसर इज सी। देखो, तो ये 10 कंट्री हो गए, और ये पापुआ न्यू गिनी एंड ईस्ट तिमोर आर करेंटली ऑब्जर्वर स्टेट। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ ईस्ट तिमोर, ये ऑस्ट्रेलिया के एकदम नीचे, और इसके नीचे न्यूजीलैंड है। देखो ना, मैं मैप पहले शो इन द मैप इफ आई कुड सी, यहाँ एकदम नीचे, यहाँ पर न्यूजीलैंड होगा समवेयर। सो न्यूजीलैंड का तो सवाल ही नहीं बनता है कि साउथ ईस्ट एशिया में, वो तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ न्यूजीलैंड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया भी था कि देखो पापुआ न्यू गिनी, ये वाला जो है ना, ये मेंबर नहीं है, बट इट इज अ ऑब्जर्वर। देखो मैंने आपको यहाँ भी बताया था, दिस इज एन ऑब्जर्वर, एंड यहाँ पे जो ईस्ट तिमोर है ना, दिस इज आल्सो एन ऑब्जर्वर, बट इट हैज अप्लाइड फॉर द मेंबरशिप, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। इट वाज साइंड इन ए 1967, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, लेट अस learn something about ASEAN. As a result of Bangkok Declaration, Bangkok is the capital of which country? Thailand. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर गुजरती है, कोई बता सकता है बैंकॉक में? So it's, I think river starts from here, goes like this in Gulf of Thailand. यहाँ पे आपको मिलेगा बैंकॉक, a very famous tourist spot. This river is called as Chao Phraya. Just you should know. है, तो ये हो गया, चार्टर बन गया, इतना नहीं जानना, चार्टर पर नहीं जानना है। Let me see now. Okay, so let's move on to the next one. Where is the headquarter of Chao Phraya? Yes, Arshur, very good. Where is the headquarter of ASEAN? ये आप बिल्डिंग देख सकते हो उसकी, जकार्ता, नुसांतारा, मनीला, पोर्ट मोरिस्बी। What is the right answer? It is in which country? कौन से कंट्री में मिलेगा? Yes, Kushagra, Pro Gaming, Arshnoor, Kori, all right. Jakarta, Indonesia. And Indonesia has decided to shift its capital. कहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं? From Jakarta to which city they have chosen? Plan तो वही है, because Jakarta, it is said कि Jakarta is maybe in few years or maybe few decades it will go inside the water because of rising sea level, greenhouse gas emission. Yes, so it has planned to shift to Nusantara. Okay. And Manila is the capital of which country? Yes, Pro Gaming, Ashnur Kaur, you all are right. Nusantara. Manila किसी कैपिटल है, पोर्ट मोरिस्बी किसी कैपिटल, ये बताइए, ठीक है। सो आसियान का भी हेडक्वार्टर जकार्ता है, दे हैव नॉट डिसाइडेड टू शिफ्ट। सो देखो, दिस इज सुमात्रा आइलैंड, this is Sumatra Island, this is Java Island, ठीक है। हाँ, पोर्ट मोरिस्बी पापुआ न्यू गिनी कैपिटल है, मनीला फिलीपींस का कैपिटल है। यस, कोशाग्रा, अर्शनोर कौर, प्रोगेमिंग, यू ऑल राइट, ठीक है। तो जावा आइलैंड है, तो भाई पूरा इंडोनेशिया है, पूरा मैं रेड से बना देता हूँ। दिस इज कंप्लीट इंडोनेशिया, ये पूरा, ये वाला, ठीक है। दिस इज इंडोनेशिया, ठीक है। और सो जावा आइलैंड में यहाँ पर आपको मिलेगा जकार्ता, बहुत ज्यादा गंदा हो जा रहा है। सो दिस इज जकार्ता and they have decided to shift the new capital to Nusantara here, ठीक है। ओके, ना अब दो तीन चीजें लोग बात करें तो कर ही लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी कैपिटल पोर्ट मोरिस्बी, यहाँ 1-2 साल पहले फीपिक की समिट हुई थी, उसे मोदी जी गए भी थे, फोरम फॉर
इंडो पैसिफिक करके कुछ ग्रुपिंग था, फीपिक सर्च करना. So Prime Minister Modi visited there, if I'm not wrong, 1.5 years back or 2 years back. खैर, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला. यहाँ आपको एक बहुत फेमस बैंक मिलेगा, एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा. ठीक है, यहीं आपको मिलेगा वो जो प्राइस है बहुत फेमस, एशियन नोबेल प्राइज. व्हाट इज दैट कॉल्ड? एशियाज नोबेल प्राइज. कौन से प्राइज होते हैं which is given from this country, Philippines? What is that called? Raman Magsaysay Award, है ना? This is given from this country. अच्छा, we recently we have decided to export something from India to Philippines, a defense equipment. What is that defense equipment? हाँ, Raman Magsaysay Award. Great, good. Programming, Ashnur Kaur, Kushagra, you all right? हाँ. We have decided, बल्कि one batch जा भी चुका है मेरे ख्याल से, as far as I could remember. One defense equipment we have decided to export to Philippines. हाँ, yes, programming right. BrahMos, ऐसे लिखते हैं, कैपिटल B, स्मॉल RAH, फिर कैपिटल MOS. मॉस्कोवा रिवर रशिया में, ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में. So because this is an India's Russia, India-Russia joint partnership to manufacture this BrahMos missile. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए because of course. And now most likely Indonesia का भी कुछ plan है something, कि maybe Indonesia might buy. So that is what you should know. Yes, Ashno Kaur, very good. ठीक है. Now let's move on to the next one. What is the anthem of ASEAN? The ASEAN way: people, planet, prosperity, one vision, one identity, one community, build back better. What is the right answer? Yes, the right answer is actually A. Anthem ये है, motto ये है. ठीक है. One vision, one identity, one community is the motto, and anthem is ASEAN way. Yes, Kushagra, Pro Gaming, Arshnur Kaur, you all right, is the right answer. ठीक है. ये flag है, ये emblem है, आपने देख लिया, motto, anthem. Okay, so we are done with this. Headquarter also is there, English language. Now let us talk about this. This is very important, I would say. Star market this. The leaders of ASEAN grouping were invited in Republic Day Parade of India in the year. तो इसमें हुआ ये था कि सारे लीडर्स को इनवाइट किया गया था. So all the leaders, ठीक है, were invited. So all the 10 member countries, उनके सारे, जैसे होता है कि रिपब्लिक डे में जनरली एक गेस्ट को बुलाया जाता है ना, जनरली head of the state of one country are invited. But in this year, when Republic Day happened, so almost, I mean, all the countries, head of the states were there present. कब हुआ था ये? Yes, Kushagra, very good. The right answer is option B, 2018 is the right answer. So आप देख सकते हो 26 जनवरी 2018 है ना, लीडर्स ऑफ आसियान एज चीफ गेस्ट विटनेस 69th रिपब्लिक डे है ना, 2018 में हुआ था. काफी प्रोमिनेंट हुआ था. आप देख सकते हो यहाँ पे मोदी जी हैं और ये सारे लीडर्स हैं. ठीक है, here is I think the president of India and rest of the leaders of all these 10 countries and their spouses. ठीक है, so they were present, they were invited as the chief guest. तो ये काफी फेमस हुआ था at that time. It had become very famous. That is what you should be knowing, है ना, फ्रॉम इंडोनेशिया. और आपको ये पता होगा 1950 में इंडोनेशिया को बुलाया गया था. और आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर दैट दिस ईयर आल्सो इन 2025 was the chief day Republic Day chief guest. It was an Indonesian head of the state, है ना, प्रबो सावंतो. So 1950 में इंडोनेशिया को बुलाया गया था. 2018 में सारे आसियान कंट्रीज को बुला लिया गया था, है ना. So that was very much in the news. So I have made a separate class on it, है ना, about this year's Republic Day. So if you are interested, just search this. You will get this video and watch it. Yes, Kushagra, Pro Gaming, you both are right. President of Indonesia बुलाया गया था. Good. है ना. So आसियान के बारे में जान लीजिएगा. 10 मेंबर कंट्री ग्रुपिंग है. इसकी जीडीपी वगैरह तो उतना नहीं जानना है. प्राइम ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, प्रमोट रीजनल पीस, है ना. इसमें है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. RCEP, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन RCEP आल्सो. ठीक है. इसमें इसमें हिस्ट्री बता रहे हैं कि प्रेडेसेसर आसियान का क्या था. ASA कहलाता था 1961 में, फिर फाइनली आसियान बना. ठीक है, इसमें नथिंग टू गो इन डिटेल. आई एम जस्ट चेकिंग इट इफ देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट.
है ना। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये म्यांमार कैसे से रोहिंग्या इश्यूज, है ना। तो एक्चुअली क्या है, आसियान कंट्रीज जो है इसमें ग्रुपिंग्स में कुछ कुछ इश्यूज होते रहे, जैसे म्यांमार में वी हैव सीन ऑन 1 फरवरी 2021 मिलिट्री कू। इससे इनफैक्ट इंडिया को भी काफी इंपैक्ट पड़ा है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। आई होप वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर। सो व्हेन मिलिट्री कू हैपेंड, सो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ऑंग सान सू की। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड हर नेम। Aung San Suu Kyi was the state councillor of the government of National League for Democracy. She was overthrown, sent to jail, and the military came to power. So, and we have seen in this region of Myanmar is famous for Rakhine state, where we have seen Rohingyas. ये पूछा था एग्जाम में कि रोहिंग्यास ऐसे पूछा था, लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन as said by UN। ये किसी एग्जाम में पूछा था अभी। तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि रोहिंग्यास आर द लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन, सो दे बिलोंग टू राखीन स्टेट ऑफ म्यांमार, but they were worshipped operation actually witnessed operation from the hands of Myanmar military and all, and they have to leave to other countries, Bangladesh, India, and different places, etc. So Rohingya genocide issues and all since August 2017, that was also very much in the news. उसके बाद फिर म्यांमार मिलिट्री coup हो गया। So that is why there have been news regarding it. So ASEAN में जो एक challenges है, उसमें main challenge ये भी बताया जाता है कि one of the challenges of ASEAN is Myanmar crisis. Okay, so that is what you should know. तो ये सब countries हैं, कब कब add हुए हैं। Original देखो 1967 वाले सब original countries हैं, उसके बाद फिर other countries started joining it. Now the next, this is important. Which of the following is not a part of एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ADMM प्लस, ऐसे लिखते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि आसियान कंट्रीज प्लस सम अदर एशियन कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो ADMM प्लस कहते हैं इसको। चाइना, इंडिया, यूएस, कनाडा, व्हाट इज द राइट आंसर? Yes, pro gaming, you are right. Canada is the right answer. तो कनाडा तो एशिया में आता ही नहीं, आसियान है ना। तो डी इज राइट। इनफैक्ट यूएस भी है, तो एक्चुअली टेक्निकली डी इज द राइट आंसर। मैं बताता हूँ क्या है। ADMM प्लस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ आसियान एंड इट्स 8 डिफेंस डायलॉग पार्ट। उसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है बिकॉज नॉर्थ कोरिया कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस, रशिया एंड यूएस, ठीक है। इसको ADMM प्लस कहते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखोगे, देखो न्यूज है नवंबर 2024 की, डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट्स इन आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस इन लाओस, है ना। फिर यहाँ पे देखो राजनाथ सिंह टू अटेंड आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस। अगर आपने न्यूज कभी भी पढ़ा होगा तो आई एम श्योर यू विल कम अक्रॉस दिस ADMM प्लस। ये आसियान की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, तो आसियान कंट्रीज प्लस 10 आसियान कंट्रीज प्लस 8 अदर कंट्रीज में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएस के लोग आते हैं। They come together and discuss, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट इट, वी शुड टॉक विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आल्सो। तो ये याद रखिएगा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर्स जाते हैं, ठीक है, अक्सर। तो अगर आप न्यूज पढ़ते होगे, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ADMM प्लस, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में क्या क्या डायलॉग्स, डिस्कशन होता है, ट्रांसपेरेंसी एटसेट्रा। तो इसको पढ़िएगा थोड़ा। आफ्टर द क्लास इज ओवर, पॉज इट, है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीस कीपिंग, मिलिट्री मेडिसिन, है ना, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, साइबर सिक्योरिटी। सो इसको थोड़ा सा आप रीड कीजिएगा जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। Okay, so these are some of the things that they have done. इतना डिटेल नहीं जाना। Now ये important है, which of the following is withdrew from the last government from RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, very important. इसमें आसियान कंट्रीज है, अगेन वही ADM प्लस प्लस टाइप्स, टेक समथिंग, आसियान कंट्रीज प्लस सम अदर कंट्रीज आर देयर। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप है। इट वाज रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे WTO तो वर्ल्ड लेवल का है ना, सो सिमिलरली इट वाज अ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। कौन सी कंट्री थी, और इसीलिए मैं इसमें स्टार मार्क लगा रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट मोमेंट इसने विथड्रॉ कर लिया था, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द आंसर इज A, इंडिया।
नॉट चाइना, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें 10 आसियान कंट्रीज है और आई थिंक +5 मोर कंट्रीज है। ठीक है, इट इज अ रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। द 15 मेंबर्स आसियान हो गया और प्लस 5 और कंट्री में चाइना, जापान, साउथ कोरिया 3 हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सो 5 कंट्रीज प्लस ये पूरा आसियान। तो 10+6 होने वाला था आइडियली, 6 इंडिया में टॉक्स में था बट लास्ट मोमेंट में वी विथड्रू इट। ठीक है, ये काफी न्यूज में था व्हेन इंडिया विथड्रू इट, व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू जॉइन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। तो डब्ल्यूटीओ के बाद, बिकॉज डब्ल्यूटीओ इज वर्ल्ड लेवल ट्रेडिंग ब्लॉक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट में last moment we had withdrawn and it was ratified, etc. Everything was there, but understanding why India's exit from RCEP. देखो, सेपरेट आसियान नेशन सेफ्टी करना अलग बात है, लेकिन 15 कंट्रीज के साथ करना अलग बात है। आई विल एक्सप्लेन कोशाग्रा। देखो उसमें रीजन क्या था। इंडिया स्टॉर्म्स आउट ऑफ आरसीईपी, सेज ट्रेड डील हर्ट्स इंडियन फार्मर्स। देखो 2021 के आर्टिकल है, व्हिच इज फेवरेबल टू ऑल कंट्रीज। देखो मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, अगर आप चाहो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। हर्ट फार्मर्स, बिजनेस वर्कर्स, कंज्यूमर्स। देखो एक क्या था, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील करते जाओ तो होता क्या, डंपिंग होना शुरू हो जाता है। डंपिंग मतलब समझते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसके रीजन क्या था। 2 रीजन मैं बताता हूँ। एक रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर ना डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। तो जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करोगे, यानी आप सारा इंपोर्ट टैरिफ रिस्ट्रिक्शन सब हटा दोगे, इनका डेयरी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा डेवलप है, तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट विल हैव टू फेस द लॉस। ठीक है, तो इंडिया को उसमें एक रीजन ये था। दूसरा, 1-2 रीजन और ये था कि चाइना जो है, अगर एफटीए पार्ट हो जाए तो मे बी चाइना कैन स्टार्ट डंपिंग इन इंडिया। डंपिंग का मतलब होता है वो चीपर रेट में प्रोडक्ट को बेचना। उससे क्या हो जाएगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई फार्मर्स वेयर, खासकर डेयरी फार्मर्स वेयर वेरी मच अप्रिहेंसिव। डेयरी फार्मिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का क्वालिटी थोड़ा कहा जाता है, क्लीनलीनेस एंड ऑल, हो सकता है डेयरी फार्मिंग ज्यादा अच्छा, ऑल्दो वी आल्सो हैव अ गुड लेवल ऑफ डेयरी फार्मिंग, बट देयर वर फियर्स कि अगर ऐसा हो जाएगा कि व्हेन वी साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वी हैव टू रिमूव ऑल द बैरियर्स एंड अदर कंट्रीज प्रोडक्ट स्टार्ट्स कमिंग, है ना, इट विल डिस्ट्रॉय आवर डोमेस्टिक कंट्रीज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। इसीलिए ये देखो यही कहा गया था कि इट सेज ट्रेड डील हर्ट्स इंडियन फार्मर्स। तो ये फियर था दैट दिस विल हैपन, और इस पे काफी सारे आर्टिकल आई थी टाइम पर 2017, 18, 19 में काफी न्यूज में था whether we should join or not, तो ये काफी it was very much in the news and finally India decided to लिखा ना, it may flood Indian market with Chinese goods and agriculture produced from Oceania। Oceania मतलब वही ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रीजन, फार्मिंग लोकल प्रोड्यूस, यही रीजन है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी, दिस इज फ्रॉम द हिंदू, यू कैन सी, है ना। सो यही फियर था कि अगर हम लोग सारा इंपोर्ट टैरिफ अगर हटाना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, अब वहां का सारा गुड्स आ जाएगा यहाँ, तो फिर इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो द आइडिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वही ना है कि हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करें ताकि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, हम सारे चीज में इंपोर्ट पे क्यों डिपेंडेंट हो। तो कोई भी डील या कोई भी ग्रुपिंग तब साइन किया था जब हमको फेवरेबल हो। लाइक व्हेन यू आर अ बिजनेसमैन यू विल डू द बिजनेस ओनली व्हेन इट इज फेवरेबल टू यू। Similarly is the country's foreign policy. It is decided by national interest. If the government or the foreign policy believes that it is helpful for our country, then only we will sign. ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे ऐसा आया था कि इंडिया इनिशियली तो काफी वी वर वेरी मच इंटरेस्टेड, बट द लास्ट मोमेंट वी डिसाइडेड नॉट टू साइन इट। ठीक है, फाइनली नहीं साइन किया था। खैर ये 15 कंट्रीज है, आप देख सकते हो, और ये 14 पार्टी शायद इसमें से एक साइन नहीं किया होगा। 15 कंट्रीज है लेकिन 14 पार्टीज है, देख लो ना, कोई एक ने साइन नहीं किया होगा। तो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और वियतनाम के कैपिटल हनोई है, यहाँ उसमें डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो वो साइन किया गया था कब, 15 नवंबर 2020 को। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो, और इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2022। थोड़ा सा आप आरसीईपी पे पढ़िएगा, ठीक है, आफ्टर द क्लासेस, और प्लीज रीड अबाउट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मे बी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो एट 6 PM आई विल नॉट बी कमिंग लाइव। तो हो सकता है नहीं हो, ये शायद रिकॉर्डेड वीडियो मिले, बिकॉज आई विल बी ऑन लीव। So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.